Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Okay, we'll start the lecture on sinking fund method. The first problem today we'll see. And yesterday I explained that what the concept of sinking fund method, what is the importance of sinking fund method, which kind of business can adopt such sinking fund method for the depreciation in their business for property plant. It is affordable for a long term business, large scale business, large scale industries that they can afford this method. And the annuity table is like Ready Reckoner. It is available like Ready Reckoner, and we need not to calculate, or we need not to find out the value of annuity table. It is provided in the problem in the sum. They have to put that value while we are making the calculations of depreciation. And there is one formula to calculate the depreciation. Today I will give this formula to calculate annual depreciation, and we'll see the simple problem. Well, let me start. Oh, this is the I'm presenting here my screen. I'm sharing my screen to you. Okay. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all. Yes, yes. This is the problem. And on the 1st January 1985, the Asian Limited acquired a leasehold property for rupees 50,000 for a period of 3 years, and then the company decided to provide for its replacements is 10% per annum interest replacement by setting up depreciation fund for the replacements. Kindly correct this. The company decided to provide for its replacement by uh, replacement by setting up a depreciation fund by setting up a depreciation fund. Okay. The expected rate of return, the expected rate of return is 10% per annum. And this sinking fund table, the expected rate of interest on investments investments is 10% per annum. Yes. The sinking fund table shows that an annual payment of rupees 0.30211. 211. Yes. At 10% per annum, it means the interest rate you will get 10%, and there will be 3 years. There will be 3 years. In that 3 years, the interest will receive on the funds amount, on whatever the amounts generated in the funds. You will get interest on that. Yes.
On 31st December 1987, the investments were sold at book value. Here, the accounting start of the sinking fund or the leads is on 1985, and the books are closed on the 31st December 1987. It means that we have to prepare a sinking fund account for 3 years. We have to prepare a sinking fund investment account for 3 years and the leasehold property account for 3 years. Okay, let me start. Depreciation fund account, the sinking fund account. The second name है depreciation fund account. We can say sinking fund account or depreciation fund account. Sinking fund investment account or depreciation fund investment account and leasehold property account. Yes. First we'll start. Yes, this is the prepare the lease, prepare the account, which depreciation fund account. Okay, depreciation fund account. This is the first. Yes. Make this format first. Oh, yes. The second one is depreciation fund investment account. Investment account. And the last one is leasehold property account. Leasehold property account. Yes. You have to write here debit particular amounts, credit particular amount for that. Yes. Here I have been prepared the format for three types of account: depreciation fund account and depreciation fund investment account, and last one is leasehold property account. Okay. Yes. Uh, First, we have to calculate the value of depreciation by using annuity table. Then we will put that the depreciation value for
for depreciation fund and depreciation fund investment account. Leasehold. That's all right. Okay, prepare these three account format, and here I have to calculate the value of depreciation here. Solution. See that calculation of annual depreciation. Uh, if the amount required for replacement is rupee 1, here you have to write with me. Uh, if amount required for replacement if amount required for replacement is rupee 1 is rupee 1 is rupee 1. Annual provision is rupees annual provision annual provision annual provision is rupee how much 0 point something 0.30211 put here. Yes, if the amount required for replacement is rupees 50,000, if amount required if amount required for replacement is rupees 50,000. Then how much annual provision to be make to be set aside तो annual provision कितना होगा? Okay. तो 50,000 के लिए कितना है ये कैलकुलेट करना है सी तो 0. 50,000 into 0.30211 upon 1. Yes, very good.
into 50,000, 50,000 divided by 1. 15,105.50. यस, कितना आता है? 15,105.5. डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कितना आता 51. है? 15,000. 15,105.50. Yes, correct. 105.5. 15,105.50. Yes, Sir, 50,000. 15105. yes, yes. 15,000. Yes, sorry. 15,105.50. Okay, so how we have calculated, how we got such value? Here the simple, यदि annual depreciation हमें calculate करना है तो इसके लिए देखो पहले 0.30211 ये एन्युटी जो एनुअल वैल्यू है सिंकिंग फंड टेबल का जो वैल्यू है वो दिया है। तो 1 रुपए के लिए कितना है? 0.30211 है। तो यदि हम रिप्लेसमेंट के लिए, हमें रिप्लेसमेंट के लिए 1 रुपया चाहिए तो इसके लिए हम प्रोविजन कितना कर सकते हैं? 0.30। We need not find out anywhere 0.320. It will be already provided. It will be given in the problem. तो 1 रुपए के लिए 0.320 है। रिप्लेसमेंट के लिए यदि 1 रुपया चाहिए तो इसके लिए एनुअल प्रोविजन कितना करना है? 0.320 में। तो यदि हमें रिप्लेसमेंट के लिए 50,000 रुपये चाहिए तो एनुअल प्रोविजन कितना करना है? 15,105.50। तो ये कितने साल के लिए करना है? 3 साल के लिए करना है, राइट? 3 साल के लिए करना है। और इस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। 10% इंटरेस्ट है दिया है प्रॉब्लम में, 10% इंटरेस्ट। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए करो। 1 रुपए के लिए 0 पॉइंट समथिंग है तो 50,000 के लिए कितना वो कैलकुलेट किया, राइट? अब ये जो 15,105 है, दैट अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज, दैट वुड बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो। उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो व्हेन वी इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इट विल अर्न इंटरेस्ट। तो इस पे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये अकाउंट बनाते हैं। चलिए फर्स्ट डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे जाते हैं। डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे तो 1985 दिसंबर, दिसंबर 31 दिसंबर 1985 क्या करेंगे हम? टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना है प्रोविजन? 15,100 105.50। यस, दिस इज द बैलेंस। यानी कि हमें ये, सपोज हम इसको परचेस कर रहे हैं ऐसे एज्यूम करते हैं, तो इसका एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब हम इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका एंट्री ये होगा। कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम? बैंक में कर रहे हैं, आउटसाइड सिक्योरिटीज में कर रहे हैं। कौन से अकाउंट से कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कर रहे हैं? 15,105.50। तो इसके पहले हमें एक एंट्री पास करना है, वो भी 31 दिसंबर को ही करना है। और वो एंट्री ये होता है जब हम ये बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से करते हैं? बाय पी एंड
यल अकाउंट। कितना बैलेंस ट्रांसफर करते हैं हम? यस, 15,105.50। वेरी गुड, करेक्ट। इतना बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे, कहाँ से करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, राइट। अब ये बैलेंस हम किधर ट्रांसफर कर रहे हैं? सिंकिंग फंड जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें एंट्री पास करना है, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो है उसको हमें क्रेडिट करना है। यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, पहला एंट्री। कल मैंने आपको बताया, पहला एंट्री बताया कि डेप्रिसिएशन फंड जो है उसको क्रेडिट करना है, P&L अकाउंट को डेबिट करना है। तो इसलिए P&L अकाउंट डेबिट किया, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को क्रेडिट किया। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा? बाय P&L अकाउंट। तो इतना हम क्या कर रहे हैं? इतना बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं। किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं? सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका एंट्री होता है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस प्रकार से। तो ये साइमल्टेनियसली ये दोनों एंट्रीज पास करना है यहाँ पे और उसका पोस्टिंग करना है। तो चलिए बाय बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को क्या करते हैं? हम बुक क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? सेम 15,000। यस, तो यहाँ पे इतना जो बैलेंस था उसको कैरेट डाउन किया। अब ये बैलेंस हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर को ब्रॉड डाउन करेंगे, राइट। तो इसके पहले हम क्या करेंगे? पहले सिंकिंग फंड का जो बैलेंस है उसको कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन करेंगे। और कौन सी डेट को? 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर 1985। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर पहले साल के लिए इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं। हम कब इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, एंट्री पास किया था 31 दिसंबर को, ईयर एंडिंग को इन्वेस्टमेंट किया है। ईयर एंडिंग को क्यों किया है ऐसा भी आप बोल सकते हो। हम प्रॉफिट कब फाइंड आउट करते हैं? ईयर एंडिंग को फाइंड आउट करते हैं। ईयर एंडिंग को प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद हम ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो पहले साल के लिए उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा? अगले साल को। अगले साल को कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 1986 को मिलेगा। कीप इन माइंड। तो अब ये बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं जनवरी 1। जनवरी 1। जनवरी 1 को क्या कर रहे हैं? हम बैलेंस ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 15,105। फिफ्टीन जीरो 15,105.50। ओके। अब ये बैलेंस भी हमें ब्रॉड डाउन करना है। फर्स्ट
जनवरी 86। ओ सॉरी, हाँ ये बैलेंस इधर होना चाहिए, ये क्रेडिट को होना चाहिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है? ओके, अब देखिए इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट की डेट आ गई है, देखिए कब इंटरेस्ट मिलता है, कैसे मिलता है वो देखेंगे। ओके, अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के बाद हमें पहले इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट बाय बैंक अकाउंट into bracket इंटरेस्ट। यस, देखो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% से कैलकुलेट करो। 1510.55. 1510.55। 55. Very good, correct. Your name? The Mansha Sheikh. Okay. अब हर एक साल को हमें बाय P&L अकाउंट से बैलेंस निकाल के ट्रांसफर करना है, वो करिए। और वो कब करेंगे? 31 दिसंबर को करेंगे, राइट। तो देखिए कितना बैलेंस ट्रांसफर करना है हर एक साल? 105.50। यस, अब देखिए ये इतना बैलेंस हमने ट्रांसफर किया, उस पर इंटरेस्ट मिला, राइट। तो अब देखो बुक क्लोज करने के पहले सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का अकाउंट देखते हैं। तो जाइए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, यहाँ पे देखो जो बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है आपने, राइट। अब हमें जो यहाँ पे आपने जो P&L अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया है हर एक साल, उस पे जो इंटरेस्ट मिला है तो उसको अगेन री इन्वेस्ट करना है। देयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे ही फंड हम जनरेट कर रहे हैं ना, तो हर एक साल का P&L अकाउंट का बैलेंस और उस पर जितना इंटरेस्ट मिला है उसको भी हम इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे? हम री इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाना है टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड इनटू ब्रैकेट। तो देखो आपको टोटल दिखाना है 15,105.50 प्लस प्लस कितना इंटरेस्ट है उस पर? 115,110.55। यस, अब ये दोनों का टोटल करके बोलो कितना आता है? 16,606.05. यस, 16,616.05, करेक्ट। 05. तो ये यानी कि इस साल हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी कि जो इंटरेस्ट मिला ना लास्ट ईयर को जो इंटरेस्ट मिला है उसको क्या किया? री इन्वेस्ट किया है हमने। क्या किया है? री इन्वेस्ट किया है। ओके, अब ईयर एंडिंग को क्या करते हैं? हम बुक क्लोज करते हैं। तो बुक क्लोज करिए, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1986। 31 दिसंबर 1986 तो हम बुक क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। करिए टोटल दोनों का कितना आता है? यस, 31,721.55. करेक्ट, वेरी गुड।
Where is that? Okay, that is missing. Okay, buy balance carried down 31,721.55. Close down the book for the second year. $31,721.55. यस, अब ये जो बैलेंस है आपको नेक्स्ट ईयर को दिखाना है 1987 को जनवरी 1st क्या दिखाना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,721.55. ओके, अब हमें ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो है, जिसको हम सिंकिंग फंड अकाउंट कहते हैं, ये अकाउंट भी क्लोज करना है इसी साल। यहाँ पे सही में टोटल आएगा 31,721.55. Yes, and on which date? 1986, 31st December 31st, to balance carried down, that is 31,721.55. यस, इस प्रकार से आपको ये दिखाना है यहाँ पे। ओके, अब देखो लास्ट ईयर को हमें क्या करना है। लास्ट ईयर को इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है। बी केयरफुल, बी कॉन्शियस अबाउट दिस। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर को सोल्ड किया है, तो किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है देखिए। 1987 जनवरी 1st, पहले क्या करो आप, बैलेंस ब्रॉट डाउन करो। कितना बैलेंस है? 31,721.55। देन उस पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट बाय बैंक इंटरेस्ट। बैंक अकाउंट into bracket interest. Yes, how much interest will get? 3,172.15. 3,172.16. Yes, this is the interest you will get. Okay, तो यहाँ पे अब हमें एडजस्टमेंट करना है। तो अब देखो, हमें लास्ट ईयर को फंड ट्रांसफर करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर करना है फंड को। कौन से फंड को? डेप्रिसिएशन फंड को, राइट। लेकिन वो अमाउंट ट्रांसफर करने के पहले हमें यहाँ पे दिखाना है कि फंड कैसे जनरेट होता है। देखिए,
तो फंड का अमाउंट कितना है? टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट कितना है? 50,000 अमाउंट है, राइट? तो 50,000 ये फंड का अमाउंट है, इतना जनरेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको अभी लास्ट ईयर को आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट सोल्ड करना है, यानी कि ये जो 31,721 इतना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पे जो इंटरेस्ट आया है 3,174, इसका टोटल करो टोटल, और मुझे बताओ कि टोटल कितना आता है? कितना आता है टोटल? 31,000 प्लस 3,000 समथिंग, कितना 1893.70. कितना आता है? 35,000 34,893.71. हाँ, तो लिसन केयरफुली, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 34,000 ये 34,800 इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है। कौन से साल तक? तीसरे साल तक, ईयर एंडिंग तक। कौन सी डेट को? 31 दिसंबर। यहाँ पे इंटरेस्ट कौन सी डेट को मिला है? 31 दिसंबर को मिला है। 31 दिसंबर को कितना अमाउंट आया है? यस, 31 दिसंबर को अमाउंट आया है 34,800, इतना अमाउंट आया है। तो 34,800 इतना अमाउंट लास्ट ईयर के लिए। तो ये जो 34,000 है ये हम क्या करेंगे? बैंक से विड्रॉ करेंगे। हमने 2 साल पहले इतना पैसा डाला था, यानी कि हम हर एक साल 15,000 को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले साल को 15,000 ट्रांसफर किया, उस पर इंटरेस्ट मिला। दूसरे साल को 15,000 ट्रांसफर किया, उस पर इंटरेस्ट मिला। अब हमें तीसरे साल को क्या करना है? असेट परचेज करना है, या तो असेट को रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे? बैंक में जितना अमाउंट जमा हुआ है ना उसको निकालेंगे। तो कितना जमा हुआ है ये दोनों का टोटल किया तो कितना आता है? 34,800। तो और हमें कितना चाहिए? तो 50,000 में से 34,800 माइनस करो तो हमें सर 893 भी आ रहा है पॉइंट समथिंग। यस 15,000 कितना? 15,000 106. 106.29. 106.29, यस करेक्ट। तो लास्ट ईयर के लिए हमें ऐसा कोई फिक्स अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है जो हम हर एक साल के लिए ट्रांसफर करते आ रहे हैं, 15,105.50। तो लास्ट ईयर को हमने कितना किया? 15,106, यानी कि 1 रुपये ज़्यादा ट्रांसफर किया। 1 रुपये भी नहीं ज़्यादा ट्रांसफर किया, कुछ पॉइंट्स में अमाउंट थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि हमें कितना अमाउंट चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए? 50,000। अभी लास्ट ईयर का अमाउंट इन्वेस्ट करना है क्या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? हमें जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ है ना, जितना फंड 34,800 का जमा हुआ है उसमें ये अमाउंट प्लस करो तो आपको कितने मिलेंगे? 50,000। फंड इज रेडी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट, तो आपको वापस री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कीप इन माइंड। ओके, तो यहाँ पे टोटल कीजिए, ये अकाउंट यहीं पे क्लोज करेंगे। तो करो टोटल कितना आता है? 50,000 आएगा। इधर भी 50,000। तो इस प्रकार से ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट क्लोज करते हैं। अब इसको क्लोज करना है। देखिए अब इसको यहीं पे हम क्लोज करेंगे। तो यहीं पे क्यों क्लोज करना है?
ये भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया है। लास्ट जो पैराग्राफ दिया है उसने ये एक्सप्लेन किया है कि लास्ट ईयर को इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया है। लास्ट ईयर यानी कि कब सोल्ड किया है? 31 दिसंबर 1987 को सोल्ड किया है। तो उसका इफेक्ट हम ऐसे दिखाएंगे कि बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। और ये नहीं बताया है कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे? 31,721। यदि 31,900 बताते हैं तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते टाइम प्रॉफिट होता। 31,721 से कम बताते तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करते टाइम लॉस होता। लेकिन यहाँ पे कोई भी ये फिक्स नहीं किया है कि इन्वेस्टमेंट कितने को सोल्ड किया है। तो हमें ये कंसिडर करना है कि जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया था, जितना हमारा फंड क्रिएट हुआ था, जनरेट हुआ था, उतना ही हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड का अमाउंट कंसिडर करेंगे। इट मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। 31,721.55। तो इस प्रकार से ये अकाउंट यहीं पे क्लोज करना है। सर उधर बाय बैंक आएगा ना? कहाँ पे? नहीं, टू बैंक। आप एंट्री देखो बेटा, कल क्या एंट्री बताया था। डोंट बी कंफ्यूज, एंट्री देखो। बट सर हमने क्रेडिट साइड पे लिखा है तो सर फिर वहां पे सर तो एंट्री बाय ही बराबर है, आते हैं सिर्फ ना? बाय लिखो, बाय। हाँ, यहाँ पे बाय हाँ आना चाहिए। एंट्री बराबर है सर, सिर्फ बाय बैंक आ रहा है, वो बोल यस रही हूँ। यस यस, दिस इज द स्मॉल मिस्टेक। आई थॉट देयर इज अ मेजर मिस्टेक। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। आपके डाउट्स है तो बोलो। योर डाउट्स आर वेलकम हियर। एंड देयर इज अ लीज फॉर प्रॉपर्टी अकाउंट। मैं ये लीज फॉर प्रॉपर्टी अकाउंट आपको 2 मिनट में बताता हूँ क्या है। तो देखिए 1 जनवरी यहाँ पे जनवरी 1 बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट खाली बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन करना है 50,000। ओके, और यहाँ पे 31 दिसंबर को भी क्या करना है? बैलेंस क्या करना है? कैरेट डाउन करना है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, yes, 50,000, 50,000। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है 50,000। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन आएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, ईयर एंडिंग को बुक क्लोज कर दिए इस साल के लिए भी। ओके, यस। लास्ट ईयर को देखो, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन
यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, फंड जनरेट होने के बाद देखो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कहाँ से फंड आया है, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से ये फंड आया है। क्या रिप्लेस करने के लिए, लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो है उसको रिप्लेस करने के लिए। नाउ फंड इज रेडी फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ दैट, so you have to write here in the bracket transfer from, transfer from which account, it is transfer from the depreciation fund account, put here. Okay, transfer from, okay, ओके। तो ये इस प्रकार से ये तीन अकाउंट इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, दैट इज सिंकिंग फंड अकाउंट, हियर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। तो जनरली एग्जाम में क्या, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, these two accounts will ask to prepare in the examination. Be aware about that. Okay, I will ask the question in the classwork for the assignment. You have to put your present in that.